हेलो टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? सो आई होप आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी, राइट? एंड यू माइट हैव एंजॉयड इट और यू ऑल आर सेफ, राइट? आपने एनवायरनमेंट ज्यादा प्रदूषित नहीं किया होगा, है कि नहीं? राइट। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो माय सेल्फ अभिषेक भारतीय, द हेड ऑफ द अनअकैडमी गेट सी चैनल, आपके लिए लेके आ रहा हूं स्ट्रक्चर एंड दिस इज बोथ फॉर गेट एंड ईएससी, राइट? Till now, we have completed many of the topics. Just last week, we have completed the cables, static, kinematic, indeterminacy and everything. उससे पहले हमने IID पढ़ा है, moment distribution पढ़ा है, everything we have completed and our syllabus will be completed by the end of this November. ठीक है, by the end of this November, we'll complete the syllabus of the structural analysis. Okay, so those who don't know about me या नए नए जुड़े हो, for them myself Abhishek Bhartiya, the head of this Unacademy Gate C channel. राइट और आपके लिए हमेशा यही कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। ओके, सो विद 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने अभी तक टोटल 7 सब्जेक्ट्स कवर किया है, राइट? इन विच अभी आप मेरे से पढ़ लो स्ट्रक्चर एनालिसिस और आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज अवेलेबल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज अवेलेबल ऑन द available on the YouTube, yes or no? अवेलेबल है कि नहीं? गो टू द प्लेलिस्ट, मिल जाएगा आपको। और अगर आपको ओपन चैनल फ्लो एंड सीपीएम पर्ट का क्रैश कोर्स करना है, इट इज ऑलरेडी डन, ठीक है? द क्रैश कोर्स ऑन सीपीएम पर्ट एंड ओसीएफ it is already completed where in the Unacademy special class that is free of cost. कोई भी उसको जाके अटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे जाके अटेंड करना है? हाउ टू अटेंड द स्पेशल क्लास? यू नीड टू गो टू द प्रोफाइल दैट इज ऑन द Unacademy। आप यूआरएल क्लिक कर देना Unacademy पे लॉगिन करने के बाद, ठीक है? क्लिक ऑन दिस यूआरएल, राइट दिस यूआरएल एंड you can follow that profile and you can get access to all the content available in the special class. Okay, and we are planning for a well planned way preparation. You can go use the code BHAR10 for getting 10% discount and my mentorship. And because if you come to the plus में आपके सिर्फ live classes नहीं होते, you get the crash course. हर 7th day will be the test. Each 4th day is the doubt solving session. The classes are available both in English and Hindi, and the rank improvement batch where you solve only the numericals. And apart from this, if you want to plan the iconic, अगर आप iconic plan करते हो, where you get a personal coach, right? In a personal coach, how does it helps you? It give you the proper study planning strategies, study booster sessions, workout sessions for the numericals, and the personalized test analysis of whatever the test you are going to do, right? And a proper study material. So currently, I've just completed the structural analysis crash course on the YouTube, that is on the plus, right? Geotechnical engineering is going on, the doubt batch is going on. Now, we are planning for the ESC 2021, ठीक है? अगर आप 2021 ESC लिखना चाहते हो, the batch is already started, so don't be late, do join it as soon as possible, right? The code is BHAR10 for the joining. Okay, so today we will be discussing about 3 hinge arch. आज हम पढ़ लेंगे about 3 hinge arch. 3 hinge, नाम से क्लियर है कितने hinge होंगे? 3 hinge. The name itself indicate how many hinges will be there. How many hinges will be there? Come on, tell me first. How many hinges will be there in a 3 hinge arch? Yes, there will be 3 hinges. Yes or no? So अगर 3 hinges है तो is it a determinate or indeterminate? अगर 3 hinge है so it is determinate or indeterminate. ये determinate होगा या indeterminate होगा? Yes, who can answer? Come on, answer in the comment box. If I am saying that it is a 3 hinge arch, then tell me whether it is a determinate or indeterminate. बोलो रे बाबा, ये determinate होगा या indeterminate होगा? Yes, let us see. देखो यहां पे, everyone see here. If I draw a 3 hinge arch, ठीक है? If I draw a
3 hinge arch. 3 hinge means hinge, no roller, hinge, right? So these are hinges, and there's one more hinge. Let us say that hinge is at the center. ठीक है? So this length, distance between the support, इसको हम बोलते हैं span. इसको हम क्या बोलते हैं? Span. And the central height, this we say as central rise. This we say as central rise. Is it clear? इसको हम बोलते हैं central rise. Is it clear? तो देखो, generally we deal with the parabolic. तो अगर parabolic है, if it is a parabolic, अगर ये parabolic है, right? So what is the equation of parabola? अगर हम बोल रहे हैं at any distance x, what is the height y? तो आप क्या लिखोगे? y is equal to 4h by l square h into l minus h. ये लास्ट क्लास में भी आपको कराया है. लास्ट क्लास में भी we have done. In the last class also we have done. So y is equal to 4h by l square h into l minus h. Is it clear? Now let us talk about whether it's a determinate or indeterminate. तो बेटा मेरे यहां देखो, look here, there's one hinge over here, one here, one here. How many hinges? 3 hinges. So what is ds? How the ds is given by for the hinge, that is for the 3 hinge arch, it is r minus s. R minus s. What are the number of support reaction? What are the number of support reaction? Yes, number of support reaction कितना होगा? 4 होगा. So 4 are the number of support reaction. Reaction हुआ 4 और s कितना हुआ? How many s? देखो 3 तो आपका नॉर्मल होगा, 3 is normal, और एक at this point, let us, if I name the point A, B and C, इस C point को हम crown point बोलते हैं. We say this as a crown. क्या बोलते हैं? Crown. So if C is there, so at the point C, you can use bending moment at C is equal to 0, क्योंकि ये hinge है. We know that at the internal hinge bending moment is equal to 0. बोलो रे बाबा, हाँ या ना? At the internal hinge we know that the bending moment is equal to 0. पता है हमको? So we have one additional equation where the bending moment at C is equal to 0. So S is 4, 3 plus 1. Is it clear to everyone? So 4 minus 4, that is equal to D 0. ds is equal to 0. ds is equal to 0 मतलब क्या है? It means that जितना सपोर्ट रिएक्शन है उतना इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. जितना सपोर्ट रिएक्शन है उतना इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. The number of support reaction is equal to number of equilibrium equation. Is it clear? That means you can determine the support reaction, right? चलो, you don't require any additional compatibility condition. So a 3 hinge arch, is a determinate structure. Is a determinate structure. ये क्या होगा? ये एक determinate structure होगा. It will not be the indeterminate structure. ये एक determinate structure होगा. Is it clear to everyone? Determinate का मतलब आपको clear है सबको, right? चलो आगे बढ़े. Shall we move then? Yes, shall we move? आगे बढ़े भाई लोग. Shall we move? Okay. देखो अब आगे एक क्वेश्चन बनाते हैं. क्या बोल रहा है? फॉर द 3 hinge arch shown in the figure, सबको 3 इंच दिख रहा होगा. डिटरमाइन द रिएक्शन एट सी. डिटरमाइन द रिएक्शन एट सी. तो कैसे करना पसंद करोगे, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? कैसे करना पसंद करोगे रिएक्शन निकालिए, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? शॉर्टकट करे या लॉन्ग कट करे, बताओ. हाउ यू वांट टू सॉल्व? यू वांट टू सॉल्व इट इन अ शॉर्टकट वे और अ लॉन्ग कट वे? हाँ भाई, शॉर्टकट वे. शॉर्टकट वे, चलिए शॉर्टकट वे करते हैं. सो फॉर द 3 hinge arch shown in the figure, determine the reaction at C. This is the horizontal load acting at B. Horizontal लग रहा है. So horizontal will be balanced by the horizontal only. Yes,
लेकिन यहां पे दो हॉरिजॉन्टल है, ए एंड सी, देयर आर टू हॉरिजॉन्टल, ए एंड सी. सो लेट अस शो द सपोर्ट रिएक्शन फर्स्ट. लेट अस शो द सपोर्ट रिएक्शन फर्स्ट. लेट अस शो द सपोर्ट रिएक्शन फर्स्ट. देखिए सारे लोग, ये P का लोड लगा है, देयर विल बी सम रिएक्शन VA, दैट इज HA VA, है ना, देन VC HC. ऐसा ही होगा, हाँ या ना, यही होगा. देखो यहां पे आप बस 4 अननोन है, यू हैव 4 अननोन्स, तो हमको कुछ तो बेसिक में जाना ही पड़ेगा. हम डायरेक्ट आंसर निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट B 0 होगा, ये बात हमको पता है. वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0. टेल मी यस और नो. द बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0 होगा. तो अगर बेंडिंग मोमेंट B पे 0 होगा, इफ आई कम लेफ्ट टू राइट, इसको इधर कर दो तो लेफ्ट टू राइट जैसा होगा. सो इफ आई कम लेफ्ट टू राइट, देयर आर टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट में दो फोर्स होंगे विच मे कॉज मोमेंट एट B, विच मे नॉट कॉज मोमेंट एट B. दोनों हो सकता है, लेकिन दो फोर्स है. बोलो हाँ या ना. और अगर हम मोमेंट कंसीडर करेंगे, इफ वी कंसीडर द मोमेंट एट B कमिंग लेफ्ट टू राइट, तो यही दो फोर्स को देखना होगा. हमको राइट वाले से कोई मतलब नहीं है. फॉर फाइंडिंग द बेंडिंग मोमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग समेशन मोमेंट, मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट का. सो कमिंग लेफ्ट टू राइट, I have two forces VA and HA. VA and HA है या नहीं? So if we have two forces VA and HA, what equation you are going to write for the bending moment at B? What equation you are going to write for bending moment at B? Come on, tell me first. What equation you are going to write for bending moment at B? By VA is passing through B. So the moment due to VA is equal to 0. The moment due to VA is equal to 0. और जो भी मोमेंट आएगा, वट एवर द मोमेंट विल बी देयर, विल बी ड्यू टू HA. वो सिर्फ HA के कारण होगा. That will be due to HA. Yes. So what you are going to write? HA into L is equal to 0. यही लिखोगे. What you are going to write? HA into L is equal to 0, which imply HA will be equal to 0. बोलो हाँ या ना. अब आप शॉर्टकट अप्लाई करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू अप्लाई द शॉर्टकट. Now you apply the shortcut, not a problem. Now you apply the shortcut. अब लगाओ शॉर्टकट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन देखो पता होना चाहिए कि कब लगेगा. आप जब भी शॉर्टकट लगाए थे, that was a determinate structure. आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे. तो जैसे HA 0 हो गया, अब आपके लिए काम आसान हो गया. बात समझ रहे हो? Yes or no? तो यहां पे आपका लोड लगा था P. दिस लोड वॉज P, दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज ऑल्सो L. हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल A पे आपका क्या हो गया, एट A हॉरिजॉन्टल इज 0. A पे हॉरिजॉन्टल क्या है, 0 है. तो जो भी लोड लगा विल बी बैलेंस, द हॉरिजॉन्टल लोड विल बी बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट C. यस और नो? द हॉरिजॉन्टल लोड विल बी बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट C. यही होगा. हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम इज द कपल. प्रॉब्लम इज द कपल. कैन एवरीवन सी द कपल? सबको कपल दिख रहा है? यस. कैन एवरीवन सी द कपल? किस डायरेक्शन में? इन विच डायरेक्शन यू कैन सी द कपल? यस. इन विच डायरेक्शन यू कैन सी द कपल? यू कैन सी द कपल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इफ द कपल इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, a couple can be balanced by the opposite couple or moment. couple कैसे बैलेंस होता है? या तो opposite couple या तो moment से. So this is the clockwise couple. It will balance by the anti-clockwise moment in the form of a couple only, because there is no provision of moment you can apply. Okay, so if this is F, this is what? Moment is P into L, which you need to balance upon L, nothing but equal to P. Now tell me, you got the reaction at C. Vertical reaction and horizontal reaction at C. What is the answer? A, B, C or D? What is the answer? A, B, C or D? You got the horizontal and vertical reaction at C. तो अब आप मेरे को बताओ, what is the
आंसर ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? ए, बी, सी और डी? बहुत लोग बोल रहे होंगे ए, है ना, बट ए इज नॉट करेक्ट बिकॉज इसने ये नहीं बोला कि कौन सा रिएक्शन। तो अगर किसी पॉइंट पे दो रिएक्शन है तो हम उसका रिजल्टेंट बात करेंगे, विल टॉक द रिजल्टेंट, ठीक है, विल टॉक अबाउट द रिजल्टेंट रिएक्शन। तो अगर आप रिजल्टेंट का बात करते हो, सो दैट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज रूट 2p। बात समझ में आया? सो दिस इज रिजल्टेंट रिएक्शन एट द सपोर्ट सी। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज रूट 2p, इट्स नॉट p, p नहीं होगा, इट विल बी रूट 2p। समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का श्योर? चलो अब आगे देखते हैं। अब कुछ बच्चे परेशान थे, सर आर्च का आईएलडी नहीं होगा क्या? भाई मैंने बोला ना, जब आर्च आएगा तब आईएलडी करेंगे, है कि नहीं? When the arch will come, then we'll do its ILD. अभी तो आर्च पढ़ लेना, so we'll do the ILD now. ठीक है? So the first thing we need to find is the ILD for horizontal thrust. Now, what do you mean by horizontal thrust? What do you understand by the horizontal thrust? Yes, क्या समझते हो आप horizontal thrust से? What do you understand by the word horizontal thrust? What do you understand by the word horizontal thrust? Horizontal thrust is nothing but horizontal reaction at the hinge support. If I talk about this horizontal thrust, ये horizontal thrust है क्या? What is this horizontal thrust? This is nothing but horizontal reaction at the hinge support. जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा ना, उसी का क्या? आईएलडी। इज इट क्लियर? तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन का तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो द आईएलडी फॉर द वर्टिकल रिएक्शन बिकॉज इट्स लाइक अ सिंपली सपोर्टेड आईएलडी। तो फॉर द वर्टिकल रिएक्शन वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द आईएलडी। अब हमको जो बात करना है दैट इज फॉर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, समझोगे ध्यान से, सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सुनिएंगे सारे लोग। इफ आई से दिस इज द okay, let me make it a better way. Okay, so if I say this is the two hinge arch, ये आपका टू हिंज आर्च है, राइट? द स्पैन लेंथ इज L and the central rise is H. The central rise is H and the unit load is moving on it. Unit load move कर रहा है. So see here, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुमको भी। कभी भी ऐसा नहीं होता, आपने ट्रस ब्रिज देखा है, मतलब आपने ऐसा ब्रिज देखा होगा, यू माइट हैव सीन दिस ब्रिज, देखा है सबने ऐसा ब्रिज? बोलो बेटा, ये पार्ट आपका सॉलिड है ना, लाइक दिस वे, एंड दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है? तो यू माइट हैव सीन दिस, आप सबने इसको देखा होगा, देखा है नहीं देखा है? हाँ, देखा है नहीं देखा है? ऐसा देखा है? ऐसा ब्रिज नहीं देखा है? नहीं देखा है? बोलो।
देखा है नहीं देखा? देखा है भाई? सब नहीं देखा होगा, सब नहीं देखा होगा। यू आर सिविल इंजीनियर, है ना? सो जो लोड होगा वो आर्च पे मूव नहीं कर रहा है, मतलब आर्च के स्पैन पे मूव नहीं कर रहा है, ये टॉप सरफेस पे मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? इट इज मूविंग ऑन द टॉप सरफेस। ये बात समझ में आ गया? इट इज मूविंग ऑन द टॉप सरफेस। सो देखो यहां पे सारे लोग, एवरीवन सी है। सो दिस इज द पॉइंट सी वेयर hinge you can obtain. You can see the hinge here. Okay. Then you can obtain the hinge here. Now we want to find the ILD for the vertical, that is the horizontal thrust, when the unit load moves on it. जब unit load इस पे move कर रहा है, when the unit load is moving from one part to the another part, so how the horizontal reaction vary? देखो जब unit load move करेगा को वर्टिकल भी आएगा, मान लो VA VB बोल रहे हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी आएगा, मान लो उसको हम बोल रहे हैं HA और HB, ठीक है? बात समझ में आया? तो वर्टिकल लोड मूव करेगा तो होगा क्या? देखो जब लोड वर्टिकल लग रहा है तो आपका जो हिंज है, मतलब जो आर्च है, वो बाहर फैलना चाहेगा। डोंट यू थिंक व्हेन यू अप्लाई द लोड द आर्च विल ट्राई टू मूव आउट? तो इसी को रोकने के लिए आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। टू रेस्ट्रिक्ट दिस द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल कम। इज इट क्लियर? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों आएगा ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज द एंड्स विल ट्राई टू मूव आउट, और ये बाहर जाने देगा नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाएगा। ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं तो समेशन एफ एच अगर 0 बात करोगे तो HA बराबर HB बोलोगे, बोलो हाँ या ना? अगर हम बात कर रहे हैं समेशन एफ एच इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर 3 इंच आर्च, तो आप लिखोगे HA बराबर HB, है ना? और इसको हम लिख रहे हैं इक्वल टू H, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको हम लिख रहे हैं इक्वल टू H, इसको हम लिख रहे हैं इक्वल टू H, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कीप द लोड फर्स्ट बिटवीन A टू C। ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, तो पहले हम लोड रखेंगे बिटवीन A टू C। द फर्स्ट आई विल अप्लाई द लोड बिटवीन A टू C। सबसे पहले हम लोड को कहां रखेंगे? बिटवीन A टू C रखेंगे, और जब A टू C रखेंगे तो आई विल राइट फॉर फाइंडिंग द HA, आई विल राइट द बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0, लेकिन राइट साइड से जहां पे यूनिट लोड नहीं होगा। यही चीज हम पहले भी पढ़े, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं आपको करने के लिए? when unit load is between A to C, what I'm saying that look right of C, look right of C, और कौन सा इक्वेशन यूज करो? बेंडिंग मोमेंट एट C is equal to 0, बेंडिंग मोमेंट एट C is equal to 0। Look here, bending moment at C is equal to 0. क्या लिखोगे? What you are going to write? Tell me first. What you are going to write? What you are going to write? Tell me first. क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे VB इंटू, ये सेंट्रल राइज है तो ये आपका L/2 है, तो VB इंटू L/2 माइनस H इंटू स्मॉल h, यही लिखोगे आप। VB इंटू L/2 माइनस कैपिटल H इंटू स्मॉल h, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से कैपिटल H क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल H? यस, इट इज नथिंग बट VB इंटू L/2H। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, बोलो बेटा, होगा या नहीं होगा? यस, इट विल बी देयर। सो आपका H आ गया व्हेन यू आर बिटवीन A टू C। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे? यूनिट लोड को आगे बढ़ाएंगे। द यूनिट लोड इज बिटवीन C टू B। यूनिट लोड कहां पे है? C टू B के बीच में। सो देखो यहां पे, व्हेन यूनिट लोड इज बिटवीन
सी टू बी, जब यूनिट लोड का है सी से बी के बीच में, सो व्हेन द यूनिट लोड इज बिटवीन सी टू बी यू विल लुक एट द लेफ्ट ऑफ सी, आप लेफ्ट ऑफ सी देखोगे, यू विल लुक लेफ्ट ऑफ सी, और जब लेफ्ट ऑफ सी देखोगे तो इक्वेशन तो वही लिखेंगे ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, यही लिखोगे। तो लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। हाँ भाई बोलो क्या लिखोगे, वी ए इंटू एल बाई टू प्लस माइनस कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। तो क्या लिखोगे, वी ए इंटू एल बाई टू माइनस कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच, दिस इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहां से कैपिटल एच क्या हो गया, दिस इज वी ए इंटू एल बाई टू एच। बोलो बेटा होगा या नहीं होगा, 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 यस और नो, इट विल बी देयर, इट विल बी देयर, यस इट विल बी देयर। एनी डाउट टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर। तो हमको VA और VB का ILD बनाने आता है, वी नो हाउ टू ड्रॉ द ILD फॉर VA एंड VB, यस और नो, we know how to draw the ILD for VA and VB. तो L and H these are constants, these are constants. तो अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं V और VB को के ILD को, तो उसके मैग्नीट्यूड विल चेंज बट द शेप विल बी सेम। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, द मैग्नीट्यूड विल चेंज बट द शेप विल बी सेम, यस और नो, शेप वही रहेगा, रहेगा ना। तो अब देखो यहां पे सारे लोग यहां ध्यान दो, एवरीवन सी हियर, इफ आई से दिस इज अ पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, L बाई टू, L बाई टू, ठीक है। तो जब यूनिट लोड A से C में था, व्हेन द यूनिट लोड इज बिटवीन A टू C, आपका कैपिटल H आया VB इंटू L बाई टू एच आया, राइट। तो VB का डायग्राम बनाने आता है, वी नो हाउ टू ड्रॉ द ILD फॉर VB, वी नो L बाई टू एच इज कॉन्स्टेंट। सो अगर हम डायग्राम बनाएंगे, सो हाउ द डायग्राम विल बी मेड, हाउ द डायग्राम विल बी मेड, यस, डायग्राम कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ यही बनेगा, यस और नो, दिस विल बी द डायग्राम, बनेगा, टेल मी यस और नो, यही बनेगा डायग्राम। तो अब अगर यही डायग्राम बनेगा, सो टेल मी ये वैल्यू, दिस इज अ VB इंटू L बाई टू एच। तो एट द पॉइंट B VB विल बी 1, सो एट द पॉइंट B VB विल बी 1 इंटू L बाई टू एच, ये वैल्यू हो गया L बाई टू एच। मगर टिल व्हाट पोर्शन इट इज वैलिड, टिल व्हाट पोर्शन इट इज वैलिड, कम ऑन टेल मी, till what portion it is valid, valid between A to C, it is valid only between A to C, so it is valid only between A to C। ये बात समझ में आ गया। तो अगर A to C valid है, if you are moving L distance, the height is L by 2, that is L by 2h, तो अगर आप L by 2 जाओगे, so what will be the height? If you move L by 2, what will be the height? Come on, tell me fast. Come on, tell me fast. What will be the height? ये height कितना होगा? This will be L by 4h. होगा कि नहीं होगा? This will be L by 4h. होगा या नहीं होगा? Come on, tell me fast. This height will be L by 4h. भाई मेरे, आप अगर L दूरी गए हो, height is L by 2h. Right? तो आप अगर L by 2 जाओगे, तो height क्या हो जाएगा? Half. That is L by 4h. Any doubt in this? Any doubt in this? बोलो रे बाबा. Any doubt? पक्का श्योर? चलो, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द लोड इज बिटवीन C to B, इट इज VA इंटू L बाई 2h। अब देखो सेम साइड बनना है, तो फर्स्ट वी नीड टू सी द हाइट एट द मिड पॉइंट, है ना, यहां पे देखना पड़ेगा। तो एट A द हाइट विल बी L बाई 2h, तो आधा पे L बाई 4h ही होगा। मतलब इतना क्लियर कर दिया कि ये यहीं से पास करेगा,
It will pass from here only, from the point C, that is height L by 4h only. ये यहीं से पास करेगा. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Tell me. Yes, is it clear to everyone? देखो अब, देखो, okay, देखो अब सारे लोग. So at this point, ये वैल्यू आपका क्या हो गया? This is VA into L by 2h. At A point VA is equal to 1. So this is L by 2h. It will exactly pass through L by 4h, है ना? And it is valid between this portion only. ये सिर्फ इस पोर्शन में ही वैलिड है. So I hope you got the effective diagram. Effective diagram मिल गया सबको? बोलो बेटा. Have you got the effective diagram? Yes. Have you got the effective diagram? मिला या नहीं मिला? Yes. So this, right, this is your effective diagram. Normal hatch कर दे रहा हूं. Let me do the normal hatching. This is the normal hatching. This is showing the ILD. समझ में आ गया? So this is your ILD for the, this is the ILD for horizontal thrust. समझ में आ गया सबको? अरे बोलो रे बाबा. This is the ILD for horizontal thrust. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes. ये आपका ILD बना for the horizontal thrust. ये पार्ट को अब solid, इसको क्या हो गया? अरे रुको, दिस पार्ट इज सॉलिड, है ना? ये आपका पार्ट सॉलिड है. इज इट क्लियर? यस. ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़े हुए, बस इसको अप्लाई करें. वी ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग्स, वी आर जस्ट अप्लाइंग इट ओवर हियर, है ना? बात समझ में आया? चलो, तो ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? यस. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अब देखो आगे. Next, I want to find the ILD for bending moment. I want to find ILD for bending moment. मुझे ILD निकालना किसके लिए? For the bending moment. I want to draw the ILD for the bending moment. ठीक है? तो अगेन आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, देखो, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान होता है. बस बात वही होता है कि अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है. डू वी नो हाउ टू अप्लाई? बस यहीं पे गेम है, गेम यहीं पे. ठीक है कुछ नहीं. दिस इज A, B, C. सेंट्रल राइज इज H. दिस इज L by 2, L by 2. ठीक है? एंड the load will not move on this. लोड इस पे मूव करेगा. ऊपर रोड बना होगा, है ना? लोड इस पे जाएगा. समझ में आया कि नहीं? लोड विल मूव ऑन दिस. ऑलरेडी हम डायग्राम बना चुके हैं, सो विल सी इट नाउ. सो एक बार जब यूनिट लोड A से C में है, और एक बार जब यूनिट लोड C से B में है, यही दो कंडीशन बनेगा. राइट? दिस आर द टू कंडीशंस. अब बेंडिंग मोमेंट तुम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं. C पे तो ILD बेंडिंग मोमेंट 0 होगा. Let us take the bending moment at point D. So at the point D, this height for any particular section, this height will be a constant quantity. Tell me yes or no. For any section D where I want to find the bending moment, ILD for bending moment at D हम बोल रहे हैं, कोई एक सेक्शन पे बोल रहे हैं. So at any section D, this rise will be a constant quantity. It will not be a variable. Come on, tell me yes or no. Come on, tell me yes or no. Yes, यही होगा एकदम. So now look here. Everyone look here. So I want to find the ILD for bending moment at D. Bending moment at D. ठीक है? Bending moment at D. So what equation you are going to write? क्या equation लिखोगे? When the unit load is between, आपके पास you already know ILD for VA, you already know ILD for HA. जानते हो? You already know ILD for VB,
यू ऑलरेडी नो ILD फॉर HB, ये बात आप जानते हो, जानते हैं कि नहीं जानते? यू नो द ILD फॉर बोथ द केसेस, यू नो द ILD फॉर बोथ द केसेस, टेल मी यस और नो। आप दोनों के लिए ILD जानते हो, है ना? तो अब देखो यहां पे एट एनी डिस्टेंस x एंड द राइज y, आपको बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का ILD क्या होगा? ठीक है, तो समझना बहुत ध्यान से सारे लोग। तो एक बार क्या कर रहे हैं, यूनिट लोड को हम A से D पे लगा रहे हैं, बिटवीन A टू D, ठीक है? सो व्हेन यूनिट लोड इज बिटवीन A टू D, सो जिस साइड लोड होता वहां नहीं देखते, उसको अपोजिट साइड देखते हैं। सो लुक राइट ऑफ D, look right of D, look right of D. So if you look right of D, the unit load is between A to D. यहां पे कोई लोड नहीं है, there is no load over here, right? There is no load over here. So what is the equation for bending moment at D? Bending moment at D. Come on, tell me first. क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो. What you are going to write? मान लो ये H है, तो ये आपका क्या हो गया? This is L minus X. होगा, होगा। हाँ बताओ क्या लिखोगे बेंडिंग मोमेंट एट डी? यू विल राइट VB विल बी इंटू L माइनस एक्स, या बेटर टू से रादर देन दिस वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ना, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो यहां पे रादर देन H एंड L माइनस एक्स, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे बात कर रहे हो, तो A और B बात कर ले रहे हैं, तो VB इंटू B माइनस ये देखो HB इंटू वाई होगा, माइनस HB इंटू वाई होगा। बोलो हाँ या ना? HB इंटू वाई होगा, ठीक है? होगा कि नहीं होगा? एनालिसिस एंड एवरीथिंग बाद में करेंगे, बट अभी के लिए ये क्लियर है। कैसे डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए डायग्राम क्लियर है सबको, ये वैल्यू क्लियर है सबको? यस, द ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी पे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, कम राइट टू लेफ्ट, सो देयर टू फोर्स व्हिच कैन कॉज द मूवमेंट, वन इज VB अदर इज HB। तो VB के कारण होगा VB इंटू B, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड HB इंटू Y, HB इंटू Y, इज इट क्लियर? सो अपोजिट था इसलिए माइनस। सो पहला केस तो ये हो गया। नेक्स्ट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनो ध्यान से। व्हेन यूनिट लोड is between D to B, D to B में, तो अगर यूनिट लोड D से B में तो क्या बोलेंगे? लुक लेफ्ट ऑफ D, कहां देखोगे? लेफ्ट ऑफ D में देखोगे। सो लुक लेफ्ट ऑफ D, तो अगर आप D के लेफ्ट में देख रहे हो, सो देयर टू फोर्सेस व्हिच कैन कॉज द मोमेंट, वन इज HA एंड अदर इज VA। एक है HA, दूसरा है आपका VA। तो HA के कारण मोमेंट हो गया HA इंटू वाई, ड्यू टू द VA द मोमेंट इज VA इंटू A, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट। सो VA इंटू A, बेंडिंग मोमेंट एट D, बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट D पे क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू, यस इट इज VA इंटू A माइनस HA इंटू वाई। अब देखो ये तो आपके पास आ गया, ये तो आपके पास आ गया। अब इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। वी विल ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, वी विल ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। फॉर एनालिसिस वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, ठीक है? डू वी नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ VB इंटू B? क्या हम VB इंटू B का डायग्राम बनाना जानते हैं? डू वी नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ VB इंटू B? बोलो हाँ या ना? यस, B is a constant, it is not a variable, and we know again Y is a constant, so we can also draw HB into Y. देखो यहां पे, देखो यहां पे सारे लोग ध्यान से, everyone see here, ये बस आपको रफ डायग्राम हम बता रहे हैं। हमको बनाना है VB into B, so this will be the diagram। बनेगा डायग्राम? बोलो हाँ या ना? बनेगा VB into B, this will be VB into B, राइट?
and we need to draw HB into y. We need to draw HB into y. That is H into y. तो H आपका मैक्सिमम सेंटर पे आएगा, ठीक है. सो व्हाट विल बी दिस हाइट? आपका H का वैल्यू कितना आया था? L/4H आया था. सो दिस इज L/4H इंटू वाई, ठीक है. तो ये ILD कौन सा है? दिस इज द ILD फॉर VB इंटू बी. दिस इज द ILD फॉर कैपिटल H इंटू स्मॉल h. ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है. अब मेरे को क्या करना है? माइनस करना है. वी नीड टू सबट्रैक्ट इट. ठीक है. आते आराम से आते, डोंट वरी. विल कम स्लोली, विल कम वन बाई वन. डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पार्ट हमको बनाना है ILD फॉर VA इंटू ए. वी नीड टू ड्रॉ द ILD फॉर VA इंटू ए, ठीक है. वी नीड टू ड्रॉ ILD फॉर VA इंटू ए. सो दिस इज VA इंटू ए, ठीक है. दिस इज VA इंटू ए. इज इट क्लियर? तो अगर ये VA इंटू ए है, ये प्लस में है कि नहीं? अब देखो, ये जो VB इंटू बी है, दिस इज वैलिड ओनली टिल ए डिस्टेंस, दैट इज A टू D, है ना. सिर्फ इतना पार्ट वैलिड होगा, बोलो हाँ या ना. टिल दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट इज वैलिड. यस. तो अगर आप यहां देखो, द हाइट इज B. सो L दूरी का है, हाइट इज B. A डिस्टेंस, द हाइट इज व्हाट? A डिस्टेंस, हाइट इज व्हाट? AB by L. कमिंग फ्रॉम देयर, देखो यहां पे, इट इज ऑल्सो वैलिड ओनली टिल B डिस्टेंस. सो दिस इज पॉइंट B, ये आपका पॉइंट D, और ये आपका पॉइंट A. सो इट इज वैलिड ओनली टिल हियर, ठीक है. सो अगर हम यहां पे कनेक्शन डालें, इफ आई कनेक्टेड, तो हमको सिर्फ ये पार्ट मिलेगा. वी विल गेट ओनली दिस पार्ट, ठीक है. बात समझ रहे हो? यस. और H इंटू वाई, इसका डायग्राम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों साइड से H इंटू वाई है. सो द डायग्राम विल बी सेम वेदर यू टेक फ्रॉम लेफ्ट और यू टेक फ्रॉम द राइट. दोनों साइड से सेम होगा. अब देखो, अब हम सुपरपोज करने जा रहे हैं. अब मेन तो पार्ट अब शुरू हो रहा है. देखो सारे लोग, तो अगर हम व्हेन आई टॉक बिटवीन A टू D, जब हम बात करें बिटवीन A टू D, ठीक है, तो हमको क्या पता है? द वैल्यू इज व्हाट? दिस ओनली. ये आपका वैल्यू है, ये आपका डायग्राम है. दैट इज व्हाट? ये वैल्यू कितना? AB by L. दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस इज AB by L होगा. और इधर से भी आपका वैल्यू AB by L. अभी हम माइनस वाला पार्ट नहीं कर रहे. तो फ्रॉम द लेफ्ट ऑल्सो, लेफ्ट में अगर AB by L आया है, राइट से भी आओगे, सो इट इज लाइक AB by L. आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस. ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम कौन सा है? दिस इज VB इंटू बी. ये डायग्राम कौन सा है? दिस इज VA इंटू ए. इज इट क्लियर? और चाहे तुम D के लेफ्ट में देखो, चाहे तुम D के राइट में देखो, आपका जो वैल्यू आया H का, दैट इज कैपिटल H इंटू स्मॉल h. ये तो वही आया. तो मैक्सिमम कहां पे आएगा? सेंटर पे आएगा ना. देखो यहां पे. सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, you will get the diagram like this. आएगा. तो we need to subtract it. हमको subtract करना है. तो we need to take the extra portion, जो कॉमन है वो तो कैंसिल हो गया. The extra portion left, this is your bending moment diagram. बात समझ में आ गया? तो ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, और ये पोर्शन, एक्स्ट्रा पोर्शन निगेटिव वाला है. सो दिस पोर्शन इज नेगेटिव. समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझना ध्यान से. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम बोले बेंडिंग मोमेंट एट D इज VB इंटू बी, अभी भूल जाओ इसको, लीव इट. बेंडिंग मोमेंट एट D इज VA इंटू ए.
ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और हमने म्यूलर ब्रेस लॉ, वी हैव आल्सो अप्लाइड द म्यूलर ब्रेस लॉ, कंसीडर इट एज अ हिंज एट दैट पॉइंट एंड लिफ्टेड बाय AB by L। पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो हाँ या ना, पढ़े हम? तो इफ वी हैव नोन कि HA into I नहीं आता तो हम उसको यूनिट हिंज मांग के लिफ्ट कर दिए होते। यही किया हमने, देखो यूनिट हिंज मांग के वी हैव लिफ्टेड बाय AB by L, बट द प्रॉब्लम हियर इज माइनस ऑफ HB into I और HA into I, बोथ HB and HA will be equal to H। तो जब आपने लिफ्ट किया by H into Y, now Y is a constant, so that is a negative ना, वो तो नेगेटिव है। H का डायग्राम भी जस्ट हमने देखा था, we have just seen the H डायग्राम। अब इसमें बस Y मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन बात क्या है कि आपको माइनस करना है, यू नीड टू सबट्रैक्ट इट, आपको सबट्रैक्ट करना है। तो जो कॉमन पोर्शन है वो कट गया, जो बचा हुआ पोर्शन है द रिमेनिंग पोर्शन विल बी लेफ्ट। सो on the left side there will be plus, on the right side there will be minus, at any point somewhere the value will be 0। is it clear to everyone? ये पॉइंट समझ में आ गया? is it clear? तो देखो, where the maximum bending moment, maximum positive bending moment, where will be the maximum positive bending moment? Tell me. Look here, at this section, at this section, at this section, and this section. This is 1 1, this is 2 2, and it is 3 3। तो at section 1 1, at section 1 1, that is at D, that is at D, you will get maximum positive bending moment। ठीक है? at section 3 3, section 3 3, you will get, that is at center, you will get maximum negative bending moment। ठीक है? and at 2 2 we need to find, मुझे नहीं पता कहां पे है वो, ठीक है, the bending moment will be equal to 0। section 2 2 पे bending moment क्या होगा? it will be equal to 0। is it clear to everyone? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? Is this point clear to everyone? अरे बोलो रे बाबा। Yes, so maximum constant bending moment जहां पे आप निकाल रहे हो, जब पॉइंट जहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैक्सिमम नेगेटिव एट द सेंटर, and the 2 2 point somewhere between them, I don't know exact, it's a mid or somewhere else because it depends on these values, right? You will get the 0 bending moment। Is it clear to everyone? ये पॉइंट समझ में आया? Yes, चलो। So okay, so let us solve this question, let us solve this question। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। let us solve this question। देखो सारे लोग, क्या दिया हुआ है? a wheel load of 10 kilonewton is moving on a 3-hinge parabolic arch of span 40 meter and centralized 10 meter। ठीक है? maximum positive bending moment is observed in the arch, maximum positive bending moment is observed in the arch at a distance of 10 meter from the left support is, at the distance of 10 meter from the left support। आपको सेक्शन स्पेसिफाई कर दिया। यस, क्या बोल रहा है? व्हाट इट इज सेइंग, क्या बोल रहा है यहां पे कि ए 3-hinge पैराबोलिक आर्च, देयर इज अ 3-hinge पैराबोलिक आर्च। ठीक है? देयर इज अ 3-hinge पैराबोलिक आर्च। ठीक है? और क्या बोल रहा है अबाउट द आर्च? इट इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक का इक्वेशन हम सबको आता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक आर्च। यस, और क्या बोल रहा है कि लोड आपका 10 न्यूटन मूव कर रहा है, आगे बात करेंगे उसका। 3-hinge एंड द स्पैन इज 40 मीटर, सो लेंथ इज 40 मीटर। और क्या बोल रहा है? सेंट्रल राइज इज 10 मीटर, दैट मींस h इज 10 मीटर। ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। मतलब at any section D which is at a distance of 10 meter from the left support। ठीक है? what is the maximum bending moment? कर नहीं लेंगे हम लोग? can't we do it? can't we do it? yes, कर सकते हैं हम लोग, एकदम कर सकते हैं। अच्छा, अगला बात क्या बोला है?
ऑल्सो डिटरमाइन द लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट एट 10 मीटर डिस्टेंस विल बी 0। ये भी बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे डी, कौन सा ऐसा लोड का पोजीशन है जहां पे डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। निकालेंगे। यस यस यस, तो विल फाइंड इट। तो भाई मेरे बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बस डायग्राम पता होना चाहिए। तो फॉर डी बेंडिंग मोमेंट एट डी, इफ आई ड्रॉ द ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, इफ आई ड्रॉ द ILD, सब लोग बहुत ध्यान से समझना, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यस, देखो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, एंड द सेंट्रल राइज यू आर ऑब्जर्विंग एट C, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, if we draw the diagram, right, if we draw the diagram, तो how the bending moment diagram will come, देखो सारे लोग, ये आएगा ड्यू टू VA एंड VB आएगा, दिस इज ड्यू टू VA एंड VB आएगा, यस, दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच 10 और इधर है 30, सो व्हाट इज दिस वैल्यू 10 into 30 divided by 40, AB by L, so 0 0 gone, 30 by 4, this is 7.5 meter, this is 7.5 meter आएगा, आएगा। देखो अगर हम माइनस वाला पार्ट लाएं, if I bring the minus part, if I bring the minus part, if I bring the minus part, देखो सारे लोग, देखो सारे लोग यहां पे, look here, yes, so what is the value, what is the value, देखो what is the value, यही बनेगा, यही बनेगा नहीं बनेगा, राइट। सो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूरा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, यस, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये कितना होगा, दिस इज हाउ मच, कितना आया था, VB इंटू L बाई 2H, L बाई 4H इंटू वाई, L बाई 4H इंटू वाई, तो पहले तो y चाहिए होगा, वी नीड y, हमको चाहिए यहां पे क्या, हमको चाहिए यहां पे y, तो कैसे निकालेंगे y, वी हैव द पैराबोलिक इक्वेशन, वी हैव द पैराबोलिक इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4H बाई L स्क्वायर H इंटू L माइनस एक्स, यही होगा ना भाई, यही होगा। तो 4H, H कितना है 10 मीटर, लेंथ कितना है 40 मीटर, सो 40 स्क्वायर, H कितना, कितने दूरी पे ले रहे हो 10 के दूरी पे, तो L माइनस H कितना है 30 है कि नहीं, सो y कितना आ रहा है 840, तो चला गया, एक 0 चला गया, तो 30 by 4, दिस इज ऑल्सो कमिंग टू बी 7.5 मीटर, y is 7.5 मीटर, सो y is 7.5 मीटर, तो ये क्या हो गया, लेंथ आपका है 40, h is your 10, y is your 7.5, तो यहां पे भी आपका जो राइज होगा वो एग्जैक्टली 7.5 होगा, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, यस। तो अब आपसे पूछा गया मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो भाई मेरे समझोगे ध्यान से, आपका जो इफेक्टिव एरिया है वो तो ये है, यस और नो, दिस इज द इफेक्टिव एरिया। तो आपको फॉर फाइंडिंग दिस ऑर्डिनेट, भाई 10 किलोन्यूटन का लोड तो यहीं पे लगाएंगे, सो फॉर फाइंडिंग दिस ऑर्डिनेट, फॉर फाइंडिंग दिस ऑर्डिनेट आपको इस पूरे हाइट में से ये वाला हाइट सबट्रैक्ट करना होगा, बोलो हाँ या ना, फ्रॉम दिस एंटायर हाइट, इफ आई से दिस हाइट इज h1, और बेटर से y1 एंड y2, लेट अस राइट y1 एंड दिस इज y2, सो इट विल डू, अगर हम बोले व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट d,
तो क्या लिखोगे आप? यू विल राइट y1 माइनस y2. आप लिखोगे y1 माइनस y2. टेल मी फास्ट. यू विल राइट y1 माइनस y2. यस और नो? यू विल राइट y1 माइनस y2. तो अगर आप y1 माइनस y2 लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग y1 माइनस y2, तो y1 तो आपको ऑलरेडी पता है. दिस y1 इज नथिंग बट 7.5 मीटर. तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो. बट हाउ टू फाइंड द y2? सी द linearity. You have moved 20 meter, the height is 7.5. So if you move 10 meter, what will be the height? So what will be the y2? 20. y2 is what? 7.5 divided by 20 multiplied with 10. That is nothing but 3.75 मीटर. समझ में आ गया सबको? दैट इज नथिंग बट 3.75 मीटर. भाई मेरे, आपको ये y2 चाहिए, तो ये लीनियरिटी दिखा ना. सी दिस ट्राइंगल. सो 20 मीटर गए हो, हाइट आपका 7.5 है. 10 मीटर व्हाट विल बी द हाइट? सिंपल लीनियरिटी लगा दी. सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज y1 माइनस y2? 7.5 माइनस 3.75. दैट इज नथिंग बट 3.75 meter. This is the maximum ordinate at D. Maximum positive ordinate for bending moment at D. Is it clear? So, we'll keep that 10 kilonewton load at D only. So, maximum positive bending moment. This will be what? This will be 3.75. आपने 10 का लोड लगाया था. So, that is 37.5 kilonewton. Is it clear to kilonewton meter? Is it clear to everyone? बोलो रे बाबा. Yes. So understood how to find the maximum positive bending moment? Yes or no? Similarly, maximum negative bending moment will be here, and I think that value will also be same. वो भी same होगा, और if any difference you can find it. Yes. चलो अब अगला बात करते हैं. The point where the bending moment is equal to 0. The point where the bending moment at ordinate D. क्या बोल रहे हैं हम? What I'm saying? Right. Point where ILD ordinate for bending moment at D is equal to 0. ILD ordinate. तो आपने अभी जस्ट डायग्राम बनाया था. You have just drawn the diagram. Let me reframe it. This was your diagram, right, for the first part. Second part, if I draw, this is the second part, है ना? यही डायग्राम आया था आपका. दिस वॉज द डायग्राम. तो अब अगर कोई पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, सो सी है, दिस हाइट इज 7.5. ओके, दिस हाइट इज 7.5. आपको दूरी कहां से बोला है? डिस्टेंस विल बी 0 व्हेन लोकेशन बोला है ना. तो मान लो लेफ्ट से ये दूरी आपका h है, ठीक है. तो दूसरे साइड से दूरी क्या होगा? फ्रॉम द अदर साइड इट विल बी 40 माइनस h. यही होगा, ठीक है. तो अब एट दिस 0 है, द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. टेल मी यस और नो. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किसके नेगेटिव के बराबर होगा? सो हियर इट इज 7.5. यहां भी आपका 7.5 है. लेट अस से दिस हाइट इज y. ठीक है. लेट अस से दिस हाइट इज y. सो लेट मी नेम द ट्राइंगल OAB. राइट, लेट अस से दिस इज OCB. ओके, नेम तो ऑलरेडी गिवन था ना, वैसे ही बना देते हैं. दिस इज A, दिस इज D. ओके, so look in the triangle ATB. Look in the triangle ADB. Look in the triangle ADB. I want to find this y.
मुझे ये y चाहिए, मुझे ये y चाहिए, तो हमको क्या पता है, लुक हियर, ये अगर A से D आपका लेंथ 10 मीटर है, so this length will be 30 meter, yes or no? This length will be 30 meter. So if I move 30 meter, the height is 7.5. So if I move 40 minus that, what will be the height? That will be y. So what I can write, y is equal to 7.5 divided by 30 multiply with 40 minus h. लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? We can write. So this is the maximum positive bending moment. Positive part, that is from the positive portion you will obtain this. अगर हम अगला लेते हैं इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB एंड आई वांट टू फाइंड दिस y, तो अब देखो आपको क्या पता है ये कहां मिलेगा, 20 मीटर सेंटर पे. So if I move 20 meter, the height is 7.5. So if I move x, the height is y. तो क्या लिखोगे, y is equal to 7.5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई विथ h. यही लिखोगे आप, बोलो हाँ या ना, यही लिखोगे. टू फाइंड दिस देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे आप, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे आप, 7.5 by 30 into 40 minus x. This will be equal to 7.5 by 20 into h. 7.5 by 20 into, any doubt in this? आराम से कुछ नहीं करें, लिनियरिटी लगा रहे हैं. So 7.5 cancel out, 0 0 cancel out. We are left with 80 minus 2h is equal to 3h. So 5h is equal to 80. That means h is equal to 16 meter. At 16 meter you will get the maximum. At 16 meter you will get the maximum. That is bending moment 0. That is ordinate for bending moment will be 0. मतलब अगर तुमने 16 मीटर पे पॉइंट लोड को लगाया तो बेंडिंग मोमेंट D पे क्या होगा, it will be 0. Bending moment at D will be 0. Is it clear? Is it clear to everyone? Tell me first. Is this point clear to all? ये पॉइंट समझ में आ गया? यस? अरे बोलो रे बाबा. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो बहुत बढ़िया. सो बाकी का क्लास हम कल से आपका लाइव आएंगे, आई विल कम लाइव, ठीक है, ताकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत बेटर होता है. इज इट क्लियर? तो बाकी आपको कल और भी कुछ पढ़ाएंगे. टेम्परेचर इफेक्ट, विल डील विद द टेम्परेचर इफेक्ट एंड द नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर, ये सब हम पढ़ ले होंगे. राइट, विल डील ऑल दिस. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप ढंग से पढ़ो बढ़िया से, है ना, यू स्टडी प्रॉपर्ली, वी आर देयर विथ यू ऑल, जस्ट दैट यू पुट एफर्ट प्रॉपर्ली. ठीक है, एंड यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स, you can see all the lectures available on Unacademy YouTube channel. Go to the playlist Unacademy Gate C. You can follow all the lectures properly. And अगर आप well planned way में आना चाह रहे हो, well planned way में आप तैयारी करना चाह रहे हो, then use the code BHAR10, right? And go for the plus or iconic either in the 12, 18 or 24 months, जो भी आपका मन करे, right? And you can avail all the notes on the Unacademy Gate C Telegram channel. और अपने पोस्ट करते ही हो. Channel, because in all the branches we are putting the best efforts. Okay, so thank you so much. So keep liking the video, sharing the video and subscribe the channel जो भी लोग नए जुड़े हो, and do hit the bell icon ताकि आपको notification मिलता रहे. Right? Thank you so much.